with This call is now being recorded. life history of variations. Okay. Now, in the last we have studied about logistic and exponential growth. Exponential growth is just not possible because resources are available, are saturated on Earth. Now, life history and variation. Now, population evolves to maximize their reproductive fitness. Population evolve होते रहती है वो to maximize the reproductive fitness, also called Darwin fitness. High R value. R क्या था? Intrinsic value of natural increase, जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था. Okay. In the habitat in which they live. Under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. Some organisms breed only once in their lifetime, जैसे salmon fish and bamboo, ये underline कर लेना. Salmon fish and bamboo once a lifetime reproduce करते हैं, while others breed many times during the lifetime. Most birds and mammals, some produce a large number of small size offspring, oyster, pelagic fish, etc., while others produce a small number of large size offsprings, जैसे whale ले लो, elephants ले लो. Okay. Now, so which is the desirable for maximum fitness? अब हमने यहाँ पे अलग अलग केस देखे, स्मॉल साइज के ज्यादा पॉपुलेशन या लार्ज साइज के स्मॉल पॉपुलेशन या वंस टाइम ऑफ ब्रीड. इनमें से है कौन रिप्रोडक्टिवली फिट? तो इकोलॉजी सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट्स imposed by abiotic and biotic component. इकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं जो भी आज जैसे भी अडेप्ट हुआ है, किसी कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा साइज में रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई कम, किसी की offspring size vary कर रही है. Elephant took almost 2 years for to parturate, whereas dogs within a 3 or 4 months they lay what how much 4 to 6 puppies, जबकि elephant 2 years में एक ही elephant. तो ये सब जो भी चीजें रिप्रोडक्टिवली उस पर्टिकुलर स्पीशीज ने अडेप्ट की है, उसका रीजन रहा है अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब सराउंडिंग का, नेचर का जो भी स्ट्रेस रिप्रोडक्टिवली ऑर्गेनिज्म के आया, उसके वजह से दे हैव अडेप्टेड. नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. Okay. तो लाइफ हिस्ट्री में जो भी वेरिएशन जिस स्पीशीज में जिस ऑर्गेनिज्म में आया है, वो ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आए हैं. ये ये इकोलॉजिस्ट का थिंकिंग था उस टाइम. नाउ पॉपुलेशन इंटरैक्शन. कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज? नहीं, पॉसिबल नहीं है. There is no such habitat, and such a situation is even more inconceivable for any species. The minimal requirement is one more species on it which it can feed. अगर एक ही species होगा तो वो feed किसके ऊपर करेगा? तो एटलीस्ट मिनिमम दो तो species चाहिए होंगे ताकि वो उसके ऊपर feed कर सके. Now, even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. And then, how will the plant manage pollination without an animal agent? ये सब आपने sexual reproduction plant में पढ़ाई होगा. Now, it is obvious that in nature, animal, plant, and microbes do not and cannot live in isolation, but interaction is in various ways to form a biological community. Even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग जगह पे जब स्पीशीज रहते हो, दैट इज इंटर. इंट्रा मतलब एक ही भी एरिया में इंट्रा कंपटीशन हो रहा है, मतलब उस ग्रुप के अंदर जितने स्पीशीज है उनके बीच में कंपटीशन हो रही है, तो इंट्रा. दो अलग अलग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर कॉम्पीट कर रहे हैं तो दैट इज इंटर स्पेसिफिक.
तो interspecific interactions arise from interactions of populations of two different species. They could be beneficial, detrimental, or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both, assigning a plus sign for beneficial interaction or नीट में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, स्पीशीज ए स्पीशीज बी। अगर दोनों स्पीशीज में दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस इंडिकेट प्रॉफिट, whereas माइनस विल इंडिकेट कि अफेक्ट हो रहा है उसके वजह से, और जीरो विल इंडिकेट न्यूट्रल। अगर एक स्पीशीज को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को भी उसके वजह से प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों का रिस्पेक्टिव प्रॉफिट है। अगर दोनों को एक दूसरे की वजह से लॉस हो रहा है, दैट इज कंपटीशन। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो उसको प्रीडेशन बोलते हैं। मतलब जैसे वर्म्स वगैरह हमारे बॉडी में रह रहे हैं, तो वर्म्स को तो ब्लड मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी फायदा नहीं है, तो डेट इज प्रीडेटर। पैरासिटिज्म भी वैसा ही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो जिसके ऊपर प्रे कर रहा है दैट इज प्रीडेशन, और जिसकी बॉडी में रह रहा है दैट इज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, एक का पॉजिटिव पर एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज कमेंसेविलिज्म। एंड एक को लॉस हो रहा है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज एमेंसिलिज्म। हमें यहाँ पे सारे एग्जांपल्स देखने हैं। नाउ बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म and both lose in competition in the interaction with each other. In both parasitism and predation, only one species benefit, and the interaction is detrimental to other species, host or prey, respectively. And then, the interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harm is called commensalism. In amensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. Now, predation, parasitism, and commensalism share a common character. The interacting species live closely together. अगर आप देखोगे कमेंसलिज्म में, हाँ सॉरी, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म में एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को न्यूट्रल है, और बाकियों को दो निगेटिव है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में, और दो पॉजिटिव है। तो मतलब ये लोग इतने क्लोजली रिलेटेड है कि लॉस और प्रॉफिट होने के लिए दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो डेट इज कि वो लोग आसपास ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज से या आसपास के लोकेशन पे ही रहते हैं। नाउ प्रीडेशन का पहला एग्जांपल है, what would happen to all of the energy fixed by autotroph organisms if the community has no animal? अगर एनिमल्स हो ही ना, तो जो भी प्लांट की एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है वो वैसी की वैसी रह जाती। You can think of predation as nature's way of transferring higher trophic levels the energy fixed by plant। हाँ, प्लांट एनर्जी बनाता है और 10% लॉस से वो ट्रांसफर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर में, ऐसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। When we think of predator and prey, the most probable it is the tiger and the deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is no less than a predator. सीड का कोई फायदा नहीं, पर इसका फायदा हो गया। Although animals eating plants are categorized separately as herbivorous, they are in a broad ecological context not very different from predators. Now, beside acting as conduits for energy transfer across trophic level, predators play an important role. They keep the prey population under control. But for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. When certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start spreading fast because they invade land does not have its natural predator. इन्होंने बोला है प्रीडेटर और प्रीडेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। जो प्रे है वो ऑर्गेनिज्म है जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, प्रीडेटर इज जो कर रहा है। अब अगर दोनों में से एक की पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा है
प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रीडेटर इंपॉर्टेंट है, बट प्रे स्पीशीज कुड अचीव अ वेरी हाई अगर वहां पे प्रीडेटर ना हो, अगर प्रे की स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो एक एंट ईटर है जो एंट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, अगर एंट ईटर ना हो तो एंट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इकोलॉजिकली इनस्टेबल है, तो प्रीडेटर और प्रे दोनों चाहिए। यहाँ पे बोला कि अगर कोई फॉरेन स्पीशीज इन्वेड होती है तो अभी उसका प्रीडेटर नहीं बना है तो वो एक प्रे है, तो वो इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करके करके इतना उसका नंबर बढ़ जाता है तो वो इकोलॉजिकली इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल दिया है द प्रिकली पियर कैक्टस, एक प्रिकली पियर कैक्टस था, उसको जब ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920s में, वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया मिलियन हेक्टर्स में क्योंकि उसका कोई प्रीडेटर ही नहीं था। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, फिर उसके बाद उसके पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल लाया गया, एक मॉथ को लाया गया जो इस कैक्टस को खाता था, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो ऐसे हमने प्रे की पॉपुलेशन को कैप्चर करने के लिए प्रीडेटर चाहिए, तो प्रे और प्रीडेटर में से हमने देखा था एक को फायदा एक को लॉस, और पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा एक को लॉस, तो दोनों भी एक चीज है, बट प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नंबर ऑफ प्रे जो है वो बढ़ जाएगा और इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। Now, biological control methods adopted in agriculture pest control are based on ability of the predator to regulate prey population. हम लोग प्लांट्स जब फार्मिंग करते हैं उसके अंदर भी पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रीडेटर हम हुए, और जिस इंसेक्ट्स या वर्म को हम प्लांट में मारना चाहते हैं उसको बचाने के लिए दैट इज प्रे। नाउ predator also helps in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. In the rock intertidal communities of America Pacific coast, the starfish Pisaster is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an close intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of specific competition. अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जब स्टारफिश रिमूव कर ली गई थी इंटरटाइडल एरिया से तो 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स और एक्सटेंड हो गए जो इसके ऊपर प्रे करने के लिए डिपेंड हुए थे। तो चाहे प्रीडेटर या प्रे दोनों में कोई एक अफेक्ट होगा तो वो जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें दोनों में चेंज दिखेगा। प्रे का पॉपुलेशन कम होने की वजह से प्रीडेटर्स का भी पॉपुलेशन कम होने लगेगा, तो रिलेटेड है। Now, if predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for the lack of food. ये तो हमने अभी just देखा। Now, this is the reason why predators in nature are prudent. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insect and frogs are cryptically colored camouflage. हमें पता है कुछ इंसेक्ट हो या फ्रॉग हो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो लोग कीमोफ्लैग या मिमिक्री प्रॉपर्टी शो करते हैं। कीमोफ्लैग क्या होता है? चेंजेस ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग कंडीशंस। वो लोग कलर चेंज करते हैं, जैसे फ्रॉग स्नेक से बचने के लिए कलर चेंज करता है, इंसेक्ट्स जो हैं फ्रॉग से या अदर इंसेक्ट ईटर से बचने के लिए कलर चेंज करते हैं ताकि वो इजीली रिलेटिव सराउंडिंग के अंदर छुप सकें। Now, some species of insects and frog, okay. Some are poisonous and therefore avoided by the predators. कुछ लोग कुछ पैरस कुछ प्रे लोग ने इतना इवॉल्व किया है कि वो टॉक्सिन्स निकालते हैं जिससे प्रीडेटर खुद ही उनसे दूर रहता है। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird because of special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during the caterpillar stage by feeding on poisonous weed. तो एक बटरफ्लाई जो है वो अपने आप को बर्ड से कैसे बचा लेती है? एक केमिकल सिक्रीज करके। तो मोनार्क बटरफ्लाई ऐसे
प्रे ने प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रखे हैं, बट ये सब नेचर और सराउंडिंग कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. नाउ फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर्स. प्लांट्स के लिए जो भी ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रीडेटर्स हुए, जैसे काउ बफेलोस. नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट्स, और 25% इंसेक्ट्स भी प्लांट खाते हैं, तो वो भी क्या होंगे, उसके प्रीडेटर्स हुए, feeding on plant sap and other parts of plant. The problem is particularly severe for plant because unlike animal they cannot run away. अब जैसे जब एनिमल्स में प्रीडेटर और प्रे की बात होती है तो प्रे को बचने के चांस हैं या कुछ चेंजेस कर सकता है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, दे आर सेसाइल, वो एक ही जगह रहते हैं. The problem is particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predators. Now plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. Example thorns, acacia and cactus वो प्रीडेटर से बचने के लिए उन्होंने अडेप्ट किया है कि थॉर्न्स वगैरह रहेंगे तो दे इट विल बी हार्ड फॉर प्रीडेटर टू अटैक. नाउ एंड केमिकल डिफेंस भी इन्होंने हर्बिवोरस के लिए बनाए हैं. Most common morphological means of defense. Now, many plants produce and store chemicals that make the herbivorous sick, बीमार कर देते हैं. When they are eaten, inhibit feeding for digestion, disrupts its reproduction or even kill it. You must have seen the weed calotropis growing in an abandoned fields. Calotropis मतलब घास. The plant produces highly poisonous cardiac glycosides. That is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. The wide variety of chemical substance that we extract from plants on commercial scale is nicotine, caffeine. हम बहुत सारे केमिकल्स जो प्लांट्स अपने प्रीडेटर से बचने के लिए बनाते हैं हम उसको यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कैफी निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइचनिन एंड ओपियम. ओपियम और कैफीन तो ड्रग्स हैं अलॉन्ग विथ निकोटीन, तो इन सब का यूज़ हम कमर्शियल लेवल पे करते हैं, जो कि एक प्रीडेटर से बचने का तरीका था उसका. बट वी आर vulnerably exploiting their chemicals now are produced by them actual as defense against grazers and browsers. ठीक है, प्रीडेशन खत्म हुआ. नाउ कंपटीशन. कंपटीशन में हमें पता है दोनों को लॉस होगा. When Darwin spoke about struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition, interspecific मतलब दो species के बीच में, is a potent force in organic evolution. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resource that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, total unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. अब कंपटीशन में क्या हो जाता है, दोनों को लॉस तो होना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फ्लेमिंगोस जब आते हैं एंड रेसिडेंट फिश और फ्लेमिंगोस दोनों भी जू प्लैंकटन के लिए टारगेट करते हैं. अब इसकी वजह से प्रे की स्पीशीज कम हो जाएगी, पर इससे दो लॉस होगा. एक, दोनों जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सबसे पहले लॉस होता है, तो कंपटीशन में दोनों को लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं. नाउ सेकेंडली, रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर. कंपटीशन इसलिए भी होता है क्योंकि रिसोर्सेस आर वेरी रिजिड, या वो बहुत ही कम है, और कंपटीशन के वजह से के बाद ही हम उसको विनिंग अचीव कर सकते हैं. अगर कंपटीशन अवॉइड करना हो तो रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेंटी, या ऐसे कि ख़त्म ही ना हो, तो केस पे कंपटीशन हम अवॉइड कर सकते हैं, वरना इट्स रियली हार्ड टू अवॉइड कंपटीशन.
इट इंटरफेयर्स कंपटीशन, अगर रिसोर्सेज कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा अल्टर करते हैं, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species, even if resources, food and space are abundant. Therefore, competition is best defined as process in which the fitness of one species, measured in terms of R, the intrinsic rate, जो हमने पीछे देखा, is significantly lower in presence of another species. It is relatively easy to demonstrate in lab experiments as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will dominate. अगर कंपटीशन चल रहा है, जैसे एक जगह है जहाँ पे दो स्पीशीज रह रही, दोनों ठंड को नहीं झेल पा रही, दे कैनॉट विथस्टैंड द कोल्ड नेचर। अब दोनों में से जिसने अडेप्ट कर लिया, कॉम्पीट कर लिया एक दूसरे में, उस सराउंडिंग कंडीशन को, वो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी एंड वो सरवाइव ज्यादा करेगी, तो उसका नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। ये थेरी किसकी थी? गाउसीस की प्रिंसिपल्स थे। व्हेन रिसोर्सेस आर, गाउसी प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट the other less dominant species. But evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some classes. The Abingdon tortoise in Galapagos Islands became extinct with a decade after goats were introduced on the island. जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में, इसमें एग्जाम्पल्स का ही पूरा क्वेश्चन है। तो एबिंगडन टोटोइस गैलापागोस आइलैंड से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? 10 सालों के अंदर गोट्स इंट्रोड्यूस हुए ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। गोट्स ज्यादा खाते चले गए ग्रासेस को, जिसकी वजह से टोटोइस अडेप्ट नहीं कर पाया और वो उसके स्पीशीज में काफी ड्यू टू स्टारवेशन कमी आ गई। Another evidence for occurrence of competitive nature becomes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when competing species is experimentally removed. Cornell Elegant Field experiment shows that on rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle, Blanus, dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle, Cathamalus, from that zone. In general, herbivorous and plant appears to be more adversely affected by competition than carnivorous. Carnivorous जल्दी reproduce भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स जिनको टाइम लगता है, प्रॉपर कंडीशन चाहिए रहती हैं। तो कहने का मतलब होता है कि हर्बीवोरस को ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन की वजह से एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। जितने भी एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो गैलापागोस आइलैंड का एबिंगडन टोर्टोइस का हो, या बैलेनस डोमिनेट कार्थेमेलस का हो, या बार्नेकल्स का स्कॉटलैंड का, ये दोनों भी याद होने चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल पूछ ले कि बार्नेकल या टोर्टोइस किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इट इज सोली एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, ओके, सॉरी, कंपटीशन। अब गॉसी का जो प्रिंसिपल है वो बोर्ड्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। गॉसिस कॉम्पिटिटिव एक्सकल्जन प्रिंसिपल। गॉसिस का जो कंपटीशन का प्रिंसिपल था वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for same resource cannot coexist। उसने बोला अगर दो रिलेटिवली दिखने वाले सिमिलर स्पीशीज अगर एक ही रिसोर्स या एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो देन व्हाट हैपन, दे कैनॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली। दोनों एक साथ उस जगह नहीं रह सकते एंड द कंपटीशन इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। दोनों में से जो इंफीरियर होगा, जो एक थोड़ा सा डोमिनेट करेगा दूसरे को, वो जिंदा रहेगा,
और दूसरी स्पीशीज अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, तो ये याद रखना, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्स cannot coexist and the competitively inferior one will be eliminated eventually। ये याद रखना, गॉसिस प्रिंसिपल है। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो ये केस आएगी नहीं, तो दोनों स्पीशीज एक साथ रह सकती हैं। बट अर्थ के ऊपर रिसोर्स लिमिटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण स्पीशीज का नंबर कंट्रोल में रहता है। नाउ more recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. The point out They point out that species facing competition might evolve mechanism that promotes coexistence rather than exclusion। वो बोलते हैं जो स्पीशीज दो जन कॉम्पीट कर रही है किसी एक चीज के लिए, तो दूसरी खत्म होने की जगह कुछ ना कुछ वो भी अडेप्शन लाके ऐसा करती है कि वो भी अडेप्ट कर जाए। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोई दोनों एक साथ कॉम्पीट ना करें, वो अवॉइड करने के लिए कोहिबिशन या कंपटीशन अवॉइड करने के लिए करते हैं, दैट इज resource patronining। If two species compete for the same, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or breeding patterns। जैसे एग्जांपल मैक आर्थर ने बोला था that five closely related species of warblers living on same tree were able to avoid competition and coexist। वो दोनों ने coexist किया ड्यू टू behavioral differences in foraging activities। वो बोल रहा है कि अगर बहुत सारी स्पीशीज एक पर्टिकुलर चीज को कॉम्पीट कर रही है, तो अपना ब्रीडिंग सीजन या फर्टाइल पीरियड बदल दे, तो फर्टाइल पीरियड के टाइम ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस टाइम वो लोग लैक ऑफ फूड या स्केर्सिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो दे ऑल कैन को एग्जिस्ट। बट अगर एक ही चीज के लिए कंपटीशन बन जाए, देन डेफिनेटली को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, एंड इट विल लीड टू जो भी इंफीरियर होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं। नहीं, एक और ऐड कर लेते हैं, पैरासिटिज्म। आई गेस ये काफी बड़ा है पैरासिटिज्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार घर पे ये टेबल को रीड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट में इसमें से ये क्वेश्चन बार बार आता है, कौन किसका एग्जाम्पल है और कौन सी स्पीशीज अफेक्ट हो रही है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव, कंपटीशन में दोनों निगेटिव, प्रीडेशन में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सेम एज वेल एज फॉर पैरासिटिज्म। एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल कमेंसिलिज्म, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल अमेंसिलिज्म। और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वो आपको सारे एग्जांपल जो इसमें दिए हैं नेम वाइज वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें रॉकी इंटस्ट्रियल, स्टार पिस्टर, पायस्टर्स, ये प्रीडेटर का एग्जांपल है, वो याद रखना पड़ेगा। देन कंपटीशन, कंपटीशन में गॉसिस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने मॉथ का, एबिंडन टोटॉइस के एग्जांपल्स दिए हैं स्कॉटलैंड में, बैलेनस के। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं। और ये किसका एग्जांपल है, ये सब कंपटीशन के। तो नो टू स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट, बट अगर रिसोर्सेस ठीक ठाक अवेलेबल है तो ब्रीडिंग सीजन्स को एक्सप्लॉइट या चेंज करके वी कैन अवॉइड कंपटीशन एंड वी कैन प्रमोट कोएग्जिस्टेंस। बस ये याद रहेगा। नेक्स्ट उसमें हम पैरासिटिज्म को पढ़ेंगे एंड कमेंसिलिज्म, और जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो देखेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा हो। ये वाले टॉपिक में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, अपने को सिर्फ जो बेसिक्स है उसको भी अगर हमने टारगेट कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। ओके, ये ग्रोथ वाला भी एक बार इसके क्वेश्चन देख लेना। हम इसके चैप्टर खत्म होने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, PYQs, ताकि ये पार्ट पूरा ही खत्म करके फिर न्यू चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझा हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।